previous class we have discussed about the spectrum. It means spectrum means the bands or the spreading of white light into bands is known as spectrum. We have already discussed that spectrum is continuous. Why it is continuous? Because there is no blank spaces in between the radiations or the bands. It means the violets merge into indigo, indigo merge into blue, and so on. It means there is no blank space in between these radiations. Therefore, they are termed as continuous spectrum. In this class, we will discuss the absorption and the emission spectrum. Absorption and emission spectrum. Let us discuss the first one, absorption spectrum. Absorption spectrum, it means when a continuous radiation or the continuous spectrum falls on a sample, then this sample will, let us draw it. We have the sample. When a continuous radiation means it has all the radiation. When a continuous means it has like this: radio wave, micro, infra, light, ultra, X-rays, gamma rays. Here we have the continuous spectrum. We have already discussed. When a continuous spectrum, radiation having continuous spectrum, falls over a sample, then this sample will absorb the radiation of certain wavelength. And again, when we observe the spectrum of this radiation, what we obtain while drawing the spectrum of this radiation, what we get, it means certain portion, certain wavelength is missing. Certain wavelength is missing. Let us see here. We have this continuous spectrum. Continuous means it contains all the wavelength. This radiation has all the wavelength. When it falls over a sample, then this sample will absorb the radiation of certain wavelength from here, and rest all we have here. Only this portion of radiation is absorbed by the sample. This is known as absorption spectrum. To the next one, we will discuss emission spectrum. Let us define it. When a radiation having continuous spectrum falls over a sample, then it will absorb the radiation of certain wavelength. Therefore, that wavelength is missing when we get the spectrum of passed
रेडिएशन। देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है जैसे हमारे पास कंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब सारे वेवलेंथ हैं और कंटिन्यूअस हैं, एक दूसरे में मर्ज होता है, कहीं भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट देन वी शैल रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म। लेट अस have a color portion like this. If this shows the continuous spectrum, what we see here, there is no blank space. It means it is a continuous spectrum. When the radiation having continuous spectrum, it means it has radio wave, it has microwave, it has infrared, it has light rays, it has ultra, it has X-rays, it has gamma rays. When it falls over this sample, let us say this is any sample which will absorb the yellow radiation, yellow color radiation. We know different sample will absorb different wavelength. Suppose, for example, this sample is going to absorb yellow color radiation. Then we have the continuous spectrum. When this continuous spectrum fall, ये पूरा जब स्पेक्ट्रम इस सैंपल पे गिरेगा और हम मान लेते हैं कि जो सैंपल की एटम्स और मॉलिक्यूल है ये येलो कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होगा, जब इमिटेड रेडिएशन का हम स्पेक्ट्रम चेक करेंगे तो इसने येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो क्या होगा, पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में से जो येलो है वो मिसिंग हो जाएगा। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं द स्पेक्ट्रम, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन a continuous radiation, when a radiation having continuous spectrum falls on a sample, then certain wavelength of the continuous radiation having continuous spectrum will be absorbed by the atoms and molecules, and this sample is excited to higher energy state. When we plot the spectrum of the emitted radiation, then we find that the certain wavelength are missing from the spectrum, and that we termed it as absorption spectrum. The next we will discuss absorption emission spectrum. Let us say having a sample which has excited state. Excited state we will define when a sample absorbs energy, then it is excited to higher energy state. Excited, it means it has higher energy content in its atom or molecule. When this excited atoms or molecule de-excite to lower energy state, it means the atoms or the molecule which has absorbed energy, then they have higher energy content. And when we know that excited state is having higher energy, and therefore that is quite unstable, and therefore they return back to the ground state, which is most stable state, and therefore it emits the absorbed radiation. It means I am going to represent it like this. We have an excited sample. We can excite this sample by irradiating with a radiation or by hitting it. When this excited sample de-excites to lower energy state, it means the atom and molecule in this sample has released the absorbed energy, then they will come to this ground state. Then they emit radiation. And the spectrum of this radiation is known as absorption spectrum. क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम में कोई सैंपल है हमारे पास, तो सैंपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसको किसी रेडिएशन से, लाइट से
इरेडिएट करे, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, किसी रेडिएशन से उसको क्या करे, इरेडिएट करे, उसके ऊपर गिराए। जब हम उसके ऊपर रेडिएशन गिराएंगे तो हम जानते हैं कि रेडिएशन कंटेन एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट करेगा। जब इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एनर्जी का कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी का कंटेंट बढ़ जाएगा तो दे आर टर्म्ड एज एक्साइटेड स्टेट, तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अब क्या है, जो एक्साइटेड स्टेट है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में है, वो काफी अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का कंटेंट अच्छा है, अधिक है। तो क्या करेंगे, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी फिर से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और वो एटम्स और मॉलिक्यूल फिर से अपने स्टेट में आ जाएंगे, लोअर स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो वो क्या करेंगे, जब नीचे आएंगे तो रेडिएशन को इमिट करेंगे। जो रेडिएशन को वो इमिट करेंगे, जब हम उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए मान लेते हैं कि यहां जो सैंपल था, सैंपल ए, वही सैंपल हमारा यहां भी है ए। तो इस केस में हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम गिराया है, ऐसा रेडिएशन जिसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसको गिराया है। जब गिराएंगे तो क्या करेगा, वो सैंपल एक डिफरेंट वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा, और ये मान लो यहां एब्जॉर्ब किया है। तो फिर सभी रेडिएशन होंगे, लेकिन जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो यहां एब्सेंट होगा, और जब वो एब्सेंट होगा तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि वही सैंपल है, उसको हमने हीट एनर्जी दिया है या रेडिएशन गिरा दिया है, वो एक्साइटेड स्टेट में पहले से है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो फिर वो जब डी एक्साइट होंगे तो सेम रेडिएशन को वो इमिट करेंगे जो यहां एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि सैंपल क्या है, यहां सेम है। तो जब सेम रेडिएशन को इमिट करेंगे, जिस पोर्शन से इसने एब्जॉर्ब किया है, अगर ये स्पेक्ट्रम ऐसे है तो हमें क्या मिलेगा, हमें केवल और केवल इतने पोर्शन पे, देखिए ठीक इसी के ऊपर उसी जगह पे हमको क्या मिलेगा, रेडिएशन मिलेगा, और जगह रेडिएशन एब्सेंट होंगे। दिस इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy. It means कोई सैंपल है, एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो डी एक्साइट होगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और जो एनर्जी इमिट करेगा उसके स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी सैंपल का जिस पोजीशन पे हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक उसी पोजीशन पे हमें उसका इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहां वेवलेंथ रेडिएशन नहीं होंगे क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और यहां तो ये रेडिएशन है ही नहीं, केवल और केवल हमको ये मिलेगा। कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। नेक्स्ट, एक्साइटेड सैंपल क्या है, एक्साइटेड सैंपल मतलब एक ऐसा सैंपल जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में हैं, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है। अ सैंपल, a substance in which the atoms and molecules have higher energy content because they have
absorb energy। अब एक चीज हमने यहां डिस्कस किया है कि जिस स्पेक्ट्रम को ये एब्जॉर्ब करेगा, सैंपल सेम है, तो उसी स्पेक्ट्रम को ये इमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि एक जो सैंपल है वो किसी डिफिनिट वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड होने पर उसी डिफिनिट वेवलेंथ को ही वो इमिट करेगा। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। डिस्कस स्पेक्ट्रोस्कोपी। We have discussed emission spectrum. We have discussed absorption spectrum. To study this emission and the absorption spectrum is termed as spectroscopy. Spectroscopy. The study of emission and absorption spectrum. Absorption spectrum is known as spectroscopy. Let us discuss what is the importance of this spectroscopy. This spectroscopy helps us to determine the unknown sample. स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम जान पाएंगे कि कोई अगर अननोन सैंपल है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से जान पाएंगे। तो चलिए, लेट अस नो इट हाउ वी विल एबल टू डिटरमाइन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ अननोन सैंपल बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम जानते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, हम जानते हैं ऐसा रेडिएशन जिसमें सारे वेवलेंथ्स हों और कहीं गैप ना हो, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो व्हेन अ कंटिन्यूअम स्पेक्ट्रम फॉल्स ओवर अ सब्सटेंस, देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल विल एब्सॉर्ब certain wavelength, and when it absorbs certain wavelength, then in their spectrum of the emitted radiation certain wavelengths are missing. That wavelength is termed as line spectrum. It means we will discuss line spectrum. When a continuous spectrum, when a radiation having continuous spectrum falls over the sample, then the atoms and molecules, then the atoms and molecule will absorb certain wavelength, and when we plot the spectrum of emitted radiation, then we find certain gaps in the spectrum which is known as line spectrum. अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सपोज हमने डिस्कस किया है लाइन स्पेक्ट्रम हमको किसमें मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिलेगा। जब हम एक रेडिएशन, मान लिया हमारे पास ये रेडिएशन है,
वो किसी सैंपल पे गिरता है। इस रेडिएशन, ये कंटिन्यूअस रेडिएशन है, इसका मतलब इसमें सारे वेवलेंथ होंगे और वो कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस इट मीन सारे वेवलेंथ होंगे ऐसे। इट मीन्स ये होली ब्लैक होगा। क्यों ब्लैक है? ब्लैक से हम दिखाना चाहते हैं कि इसमें कहीं भी गैप नहीं है। इसका मतलब सारे रेडिएशन हैं और कहीं भी गैप नहीं है। ऐसे रेडिएशन को कंटिन्यूअस रेडिएशन कहते हैं। लेकिन जब ये रेडिएशन इस सैंपल पे गिरेगा तो इस सैंपल्स के एटम और मॉलिक्यूल सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कुछ वेवलेंथ को अगर इसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जब इमिटेड रेडिएशन है, ये इमिटेड रेडिएशन है, तो इमिटेड रेडिएशन के जब स्पेक्ट्रम को हम प्लॉट करेंगे तो पाएंगे कि सर्टेन वेवलेंथ मिसिंग है। देखिए ये जो गैप दिखा रहा हूं उस समय दिखाना चाहता हूं कि ये वेवलेंथ जो है वो मिसिंग है। और ऐसे जो मिसिंग वेवलेंथ्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो बड़े इंपॉर्टेंस का है। कैसे इंपॉर्टेंस का है? क्योंकि सपोज अगर हमें किसी नोन सैंपल का लाइन स्पेक्ट्रा पता है, जैसे हम जानते हैं कि मान लो कि ये सैंपल जो है वो हमारे पास सोडियम है और सोडियम का ये लाइन स्पेक्ट्रा हमको नोन है। कैसे पता चलेगा? ये पता कैसे चलेगा कि हम नोन सैंपल लेंगे जिसको जानते हैं कि ये सोडियम है और उसका स्पेक्ट्रा प्लॉट करेंगे तो इसका जो हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो देखेंगे कि सोडियम है तो यहां मिसिंग है। फिर क्या करेंगे? हमारे पास मान लीजिए ये अननोन सैंपल है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कुछ भी सैंपल है। अब इस पे हम क्या करेंगे? फिर रेडिएशन को गिराएंगे। अब ये हम जानते नहीं कि ये है, इसमें अननोन सैंपल है। अननोन सैंपल है, मान लीजिए ऐसे अननोन सैंपल हमको पता नहीं है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। जब अननोन सैंपल है, रेडिएशन गिराया और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था ऐसा, जब इसका एमिशन स्पेक्ट्रम हमने प्लॉट किया तो देखा, देखिए मैं ठीक इसके नीचे ही बनाता हूं, हमने देखा कि ठीक जहां ये एब्सेंट था वहीं एक फिर एब्सेंट रेडिएशन मिल रहा है। फिर कहीं और भी एब्सेंट हो सकता है, दूसरा सैंपल होगा तो फिर कहीं और भी एब्सेंट हो सकता है, तीसरा सैंपल होगा। लेकिन हम देख रहा ना कि इस पोजीशन पे जहां एक एब्सेंस मिली थी, यानी कि ये जो वेवलेंथ गायब था, इसमें भी वो वेवलेंथ गायब है और इसमें ये वेवलेंथ गायब है। यहां तो वेवलेंथ इसलिए एब्सेंट था क्योंकि सोडियम इसको एब्सॉर्ब किया था, इस वेवलेंथ को, यानी कि सोडियम इस कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ये कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसमें सोडियम है। इस तरीके से नोन सैंपल का और अननोन सैंपल का जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम टैली करेंगे और देखेंगे कि अगर वो कुछ पोजीशंस पे जहां जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टैली कर रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि ये सैंपल है। सर्टेन एलिमेंट सच एज कैल्शियम, सच एज सीजियम, इनको हमने इसी तरीके से पाया है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब दैट विल नॉट चेंज और दैट विल नॉट टैली विथ अदर एलिमेंट्स। ये यहां अगर वेवलेंथ गायब है तो दूसरे एलिमेंट का यहां हमें लाइन स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। जैसे फिंगरप्रिंट टैली नहीं करते, वैसे ही हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग होते हैं और जब सभी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा अलग हैं तो हम अननोन सैंपल से इस नोन सैंपल को टैली करके अननोन सैंपल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम।